3 and 2, 3 2 6, 3 2 will be common out. Here you will get 4 minus 1. 6 into 4 minus 1, and you will get 6 into 3. You will get your answer 18. So this is your second part of your first question. This was your second part. We are doing exercise 7.2. First question is 8 factorial. Simply we have to write this 8 7 6 5 4 3 2, and we have to multiply all these value. You will get value of 8 factorial. Second part of this question is 4 factorial minus 3 factorial. 4 factorial means 4 3 2 into 1 हमने ब्रैकेट में देखा. In the same way 3 factorial is this. हमने इस पूरी ब्रैकेट में से देखा 3 और 2 is common. We will take 3 and 2 in common. 3 2 हमने कॉमन निकाल दिया. यहाँ से 4 minus 1 and you will get 3. After multiplying this we will get 18. So this is the meaning of factorial, and we are analyzing the factorial, and we will keep up this exercise 7.2. The question number 2 is, अब फैक्टोरियल्स के मामले में जैसे हम कहते हैं कि हमें कोई इंटीजर्स को ऐड करना है, जैसे हमने किया कि 3 + 4 = 7. हमने नंबर को ऐड किया तो लेफ्ट और राइट साइड आपकी इक्वल है. लेफ्ट साइड में जो वैल्यू ऐड करने के बाद राइट साइड में की वैल्यू आई है, तो मींस लेफ्ट और राइट साइड की वैल्यूज इक्वल है. क्या फैक्टोरियल के केस में भी ऐसा पॉसिबल है? Is it possible in case of factorial? So we will do the second question. This is not possible in case of factorial. If these value are 3 factorial and 4 factorial, 7 factorial, this is not possible. These are not equal. तो ये सारी वैल्यू इक्वल नहीं आ सकती, हमेशा ये इक्वल नहीं आएंगी. हो सकता है कि कभी कुछ वैल्यू ऐसी हो कि इक्वल आ जाए, बट ऑलवेज नॉट ऑलवेज ट्रू. तो इस चीज की सेकंड क्वेश्चन इज दैट 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, वो पूछ रहा है आपसे क्या ये 7 फैक्टोरियल के इक्वल है. इज इट ट्रू? क्या ये 7 इन दोनों का एडिशन इस फैक्टोरियल के इक्वल आएगा? आप लेफ्ट और राइट साइड से दोनों की डिफरेंट वैल्यूज अलग अलग तरीके से निकालिए. इन द लेफ्ट साइड दिस इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल. 3 factorial means 3 into 2 into 1 plus 4 factorial in 4 3 2 and 1. From here this is 6 and this is 24 and this is 30. तो लेफ्ट साइड की वैल्यू को सोल्व करके फैक्टोरियल्स को सोल्व करके क्या वैल्यू आएगी? दैट विल बी द 30. एंड इन द राइट साइड वैल्यू इज 7 factorial means 7 6 5 4 3 2 and 1. So after multiplying these value, you will get different value. This will be 5040. So left side value is 30, right side value is 5040. These are not equal, so this is not equal. So you can say that 3 factorial plus 4 factorial is not equal to 7 factorial. This is your answer. So you have to compute in a third question. You have to compute. Now we will do the third question of exercise 7.2 NCERT. 8 factorial divided by 6 factorial into 2 factorial. अब फैक्टोरियल को हमने आपको बताया कि फैक्टोरियल को आप 8 फैक्टोरियल इस फॉर्म में लिखिए, या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे इस फॉर्म में भी हो सकता है आपका 8 फैक्टोरियल, और ये आपका 6 फैक्टोरियल इस तरह से हो सकता है मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल. दोनों नोटेशन आपकी फैक्टोरियल इस तरह की भी हो सकती है और ये भी फैक्टोरियल की नोटेशन है. नाउ यू हैव टू सॉल्व. अगर छोटी स्टेटमेंट है तो आप इसको 8 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हो? 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल. डिनोमिनेटर इज 6 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल मींस 2 into 1. हमने इस 6 फैक्टोरियल को एक्सपेंड नहीं किया because in a numerator is a 6 factorial and this will cancel out. So all terms which are written in the 6 factorial will be cancel out. Numerator and denominator will cancel out. So we will get from here 5 and अब इसको reduce कर दीजिए. From here we will get 28.
7 4 जा 28. So this is simple question of third question is simple. Fourth question, in the fourth question you have to find a missing term. Question number 4, 1 by 6 factorial plus 1 by 7 factorial is equal to x by 8 factorial. You have to find the value of this x. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को करने के बाद एक ट्रिक भी बताएंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कंपटीशन एग्जाम में सॉल्व होती है आपकी. तो आपको x की वैल्यू निकालनी है. तो व्हाट वी हैव टू डू एंड वी हैव टू सॉल्व, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. अब ये आपका 8 फैक्टोरियल यहाँ डिनोमिनेटर में है, इक्वल टू के इधर आकर न्यूमिनेटर में आ जाएगा. 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 factorial is equal to x, and you have to solve these value. In the left side you will get your value of your x. So 8 factorial means 8 into 7 into 6 factorial, denominator is 6. अब लिखने के तो हम इसको 6 5 4 3 ऐसे लिख सकते थे, but we are stopping here at 6 factorial because denominator is 6. हमें पता है 6 factorial से 6 factorial cancel out हो जाएगा. This is 8 and 7 factorial divided by 7 factorial is x. This will cancel out. From here you will get 56 plus 8 is equal to x. This will be 64. X means value of x is 64. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा. ये तो इसका सॉल्यूशन था. ये किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन हो सकता है. कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनडीए वगैरह में. तो 1 by 6 फैक्टोरियल प्लस 1 by 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x by 8 फैक्टोरियल. यहाँ आप एक सीक्वेंस को ऑब्जर्व कर रहे हो. 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल. अभी हमने आंसर क्या निकाला इसका 64. x की वैल्यू 64 ये हमने यहाँ पे लिख दिया. दिस इज योर आंसर. अब ऑब्जर्व करना आपको, अगर आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम चेंज कर दें, यहाँ पे हमने लिख दिया 1 by 9 फैक्टोरियल प्लस 1 by 10 फैक्टोरियल. यहाँ 6 के बाद 7 था और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है. 9 10 इज इक्वल टू x by 11 फैक्टोरियल. व्हाट विल बी द आंसर? तो जैसे ये 8 लिखा हुआ है तो आप एक ट्रिक बनती है कि 8 का स्क्वायर आप ऊपर लिख दीजिए आंसर, यानी कि 8 8 64. यहाँ 11 है, 11 11 को मल्टीप्लाई करके आंसर विल बी 121. दिस विल बी योर आंसर. लेकिन पैटर्न क्या है? डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो, न्यूमिनेटर में 1 होनी चाहिए. 1 by 6 फैक्टोरियल 1 by 7 फैक्टोरियल ये कंटिन्यूस है. उसके बाद 8 फैक्टोरियल याद है, यानी कि 6 7 8 ये फैक्टोरियल में लिखे हो. इसी तरह देखिए 9 10 एंड 11 ये कंटिन्यूस में लिखे हुए हैं. तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 into 11 121. तो एक यूनिक सा पैटर्न बनता है. इसके लिए अगर आप सॉल्व करके निकालोगे तो भी आंसर यही आएगा. सो आपको ट्राई करना है. कोई दूसरा क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए. दैट इज 5 फैक्टोरियल प्लस 1 by 6 फैक्टोरियल x by 7 फैक्टोरियल. You have to try this question. You have to practice this question. And answer of this question is, according to pattern, you know that you will get 49. 5 6 7 and value of x will be 49. So this is your fourth question. You can practice these question by completely solve करने का मैंने आपको ये बता दिया कि जैसे 8 को इधर लेके जाएंगे और फैक्टोरियल की वैल्यू को आप एक्सपेंड कर दीजिएगा. Now fifth question, you have to evaluate n factorial divided by n minus r factorial when value of n is 6 and r is 2. In the first case value of n is 6 and r is 2. अब ये वैल्यू दोनों पुट कर दीजिए, n और r की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे. व्हाट यू विल गेट 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 minus 2 फैक्टोरियल.
From here you will get 6 factorial divided by 4 factorial, and this will become 6 into 5 into 4 factorial and divide by 4 factorial. So 4 factorial cancel out with 4. This will become 30. So in the first part, after solving this, you have to put the value of n and r, and you will get 30. So in the same way, you can try second question. यहाँ से 7.2 आपकी कंप्लीट होती है एक्सरसाइज. फैक्टोरियल से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो हमने डिस्कस की. फैक्टोरियल को कैसे एवेलुएट करना है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हो सकते हैं इससे रिलेटेड. उसके बाद हम अपना वी विल सॉल्व परमुटेशन. वी विल कम टू द पॉइंट परमुटेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमुटेशन. वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू फैक्टोरियल. इसके बाद फैक्टोरियल को थोड़ा सा और एनालाइज कर लेते हैं. कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट दीज आर बियॉन्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी. एक क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जांपल में एक क्वेश्चन है, जैसा कि हमने अभी आपको करवाया था क्वेश्चन. 8 फैक्टोरियल प्लस 1 by 9 फैक्टोरियल is equal to x by 10 factorial. You have to solve this question. This question is from NCERT example. ये NCERT examples में भी given है ये. Next question, important question. You have to find the value of n. You have to find the value of n. And question is that n plus 2 factorial is equal to 2550 n factorial. This is given. And you have to find the value of n. n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये आपको कंडीशंस गिवन है. इस कंडीशन को ध्यान से देखिएगा. इसको आप फैक्टोरियल को कैसे एक्सपेंड कर सकते हो. यहाँ n plus 2 फैक्टोरियल. n plus 2 फैक्टोरियल मीन्स n plus 2. इसमें से एक वैल्यू रिड्यूस की, यू विल गेट n plus 1. फिर इसमें से एक वैल्यू फिर रिड्यूस कीजिएगा. n plus 1 में से 1 रिड्यूस किया, you will get n. अब n फैक्टोरियल पे आके इसको स्टॉप कर सकते हो, बिकॉज राइट साइड यू आर लिखिंग देयर इज ऑल्सो n फैक्टोरियल. अब यहाँ पे आपको n फैक्टोरियल भी है, इसलिए हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया. इससे फर्दर रिड्यूस करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन हमें देखिए यहाँ पे n फैक्टोरियल है, इसलिए हमने रिड्यूस कर दिया. बिकॉज बोथ साइड n फैक्टोरियल विल कैंसल आउट फ्रॉम द n फैक्टोरियल, एंड दिस विल बिकम n plus 2 n plus 1 is 2550. अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है. यहाँ से दो लीनियर फैक्टर है, यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू लीनियर फैक्टर, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उसके बाद उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर. n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n 2550, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 minus 2550 is equal to 0. From here this will become minus 2548 equal to 0. This is your quadratic equation. You have to apply whether a quadratic formula, whether you split the middle term, and you have to find the value of it. So it will be easy to apply quadratic formula, and after quadratic formula you will get the value of n. So n will be, there will be two value of n, that is 49 and minus 52. अब इनमें से दोनों वैल्यू में से कौन सा आपका आंसर रहेगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, अब ये सोल्व करना तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आप सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करने के बाद ये दो वैल्यू आपको नजर आएंगे. इनमें से कौन सा आपके लिए आंसर होगा, दैट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो अगर आपके ये सोल्व करने से बाद, फैक्टोरियल की वैल्यू को सोल्व करने के बाद कोई n आ रहा है, अगर ये नेगेटिव में आ रहा है तो आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे. n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज वी हैव टू टेक द पॉजिटिव इंटीजर, एंड ये आपका पॉसिबल नहीं हो सकता. सो वी विल टेक दिस आंसर, n इक्वल टू 49 विल बी योर आंसर. क्योंकि अगर आपको n की वैल्यू कभी आपकी नेगेटिव हुई, और आपको ये एक प्रॉपर्टी है इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बताई जा रही है, जो n की वैल्यू नेगेटिव हुई और नेगेटिव वैल्यूज को, जैसे आपको n फैक्टोरियल आप निकालना चाहते हो, तो -52
फैक्टोरियल, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती यहाँ पे, इसके लिए कोई आंसर नहीं होता, दिस इज मीनिंगलेस। So answer will be n equal to 49. You have to take a positive value. तो इस क्वेश्चन के थ्रू जो इंपॉर्टेंट बात हम बताना चाह रहे थे वो ये है कि n की वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव नहीं लेनी है। So all important concept related to factorial has been completed. Now next important point is related to permutation. Now we will discuss the permutation. Before doing the permutation, we will do the fundamental principle of counting. आपके एक तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दो ही प्रिंसिपल आते हैं आपके, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल की हेल्प से उसको समझते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को। सपोज देयर आर 4 कॉलेजेस, we are taking an example and we want to understand the fundamental principle of counting. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी बोलते हैं उसको, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशंस भी बोलते हैं। Because suppose that there are 4 colleges in a city. Listen this question, there are 4 colleges in a city. In how many way can a man send 3 of his son to a college if no 2 of his son are to study in the same college? मतलब आपके पास एक शहर के अंदर 4 कॉलेज हैं और 3 बच्चों को उन कॉलेज में पढ़ना है। सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे कोई 3 बच्चे हैं आपके, एक मैन हैज 3 चाइल्ड, S1, S2 and S3. We are writing this here. And there are 4 colleges. Let A, B, C and D. This is C and this one is D. These are the 4 colleges. आपके पास एक 3 बच्चे हैं, 3 स्टूडेंट हैं। उन 3 स्टूडेंट को वो 3 स्टूडेंट है, S1, S2, S3, कुछ भी नेम हो सकते हैं। उनके लिए 4 कॉलेज है, बट कंडीशन इज दैट कोई भी नॉट 2 ऑफ हिज सन्स, जो ये 2 स्टूडेंट्स हैं उसको सेम कॉलेज में नहीं पढ़ना। कोई भी 2 बच्चे एक कॉलेज में नहीं पढ़ने चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी कि 2 बच्चे एक ही कॉलेज में नहीं पढ़ने चाहिए। उसके लिए क्या कंडीशंस हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है? फर्स्ट स्टूडेंट के लिए तो 4 ऑप्शन खुले हुए हैं कि वो 4 में से किसी भी कॉलेज में जा सकता है, या तो वो ए कॉलेज में जाए, बी में, सी में या डी में। ABCD आर नेम ऑफ कॉलेजेस। अब सेकंड स्टूडेंट के लिए, ये सेकंड के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? अगर फर्स्ट स्टूडेंट ने ए कॉलेज चूज किया है, क्या सेकंड को ए चूज करना है? नहीं करना, क्योंकि 2 बच्चों को एक कॉलेज में नहीं जाना। यानी कि इसके पास कॉलेज पॉसिबिलिटी है कि ये बी चूज कर ले, या फिर सी चूज कर ले, या फिर डी। इन तीनों में से कोई भी एक चूज कर ले। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? सो फॉर द स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट के लिए 3 पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो बी या सी या डी। यानी कि इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बन, या इसके साथ, या इसके साथ। लेकिन ये जो सेकंड स्टूडेंट है वो ए कॉलेज चूज नहीं कर सकता। अगर फर्स्ट वाले स्टूडेंट ने ए कॉलेज चूज किया है तो इसके पास 3 पॉसिबिलिटीज बची है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब फिर थर्ड वाले के लिए चॉइसेस और कम हो जाती हैं। कैसे कम हो जाती है? अगर फर्स्ट वाले ने ए चूज कर लिया और सेकंड स्टूडेंट ने बी कॉलेज चूज कर लिया, अब इसके पास तो सी और डी 2 ही बचे हैं।
अब ना तो ये ए ले सकता ना ये बी ले सकता, यानी कि सी और डी दो ही चॉइसेस बची हैं। यानी कि अगर इसने ए किया है और यहाँ से ए से हम बी पे इसने बी चूज कर लिया, तो या तो ये सी चूज कर सकता है या डी, मीन्स इसकी पॉसिबिलिटी इस तरह से बन रही है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो इस फिगर को, इस अरेंजमेंट को देख के आप किस तरह की पॉसिबिलिटीज लगा सकते हैं? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? किस तरह की पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं? या तो वो ए बी सी वाले चूज करेगा, ए बी सी, या फिर ए बी और डी, यानी कि फर्स्ट वाला ए चूज कर लेगा, सेकंड वाला बी और थर्ड वाला डी। आप देखिए तीनों स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज चूज कर रहे हैं, या तो ये कंडीशन बन सकती है या फिर ये वाली कंडीशन। We are understanding fundamental principle of counting. In the same way, if the first students choose the college A, तो ये इसने C को चूज किया, तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी बचती है, या तो ये B को चूज करे या फिर ये D को चूज करे। C तो चूज ही नहीं कर सकता ये, क्योंकि C तो सेकंड स्टूडेंट ने चूज किया है। अब इसका काम खत्म हो चुका है हमारे पास, ये वाला काम खत्म हो चुका है, ये पहले वाला, इसके हमने चॉइस लिख दिया, अरेंजमेंट पॉसिबल अरेंजमेंट लिख दिया। अब दूसरी कंडीशन पे विचार कीजिए, अगर इसने ए चूज किया है, ये सी कर सकता है। सी किसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं? बी के साथ या फिर डी के साथ। अगर ए सी और बी, इसके कॉम्बिनेशन क्या है? ए सी बी, इसके कॉम्बिनेशन क्या बन रहे हैं? ए सी एंड डी। इसी तरह से अगर इसने ए चूज किया है, इसने डी, तो थर्ड वाले स्टूडेंट के पास क्या पॉसिबिलिटी बचती है? या तो ये बी चूज करेगा या फिर सी चूज करेगा। अब ये इसके साथ जा सकता है या फिर इसके साथ, यानी कि इनकी कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? ए डी बी, ए डी बी, और दिस कॉम्बिनेशन इज ए डी सी, ए डी सी। सो इन द सेम वे आप देख रहे हो कि फर्स्ट स्टूडेंट ने ए चूज किया था, तो सेकंड स्टूडेंट के पास सिर्फ तीन पॉसिबिलिटीज बची थी, क्योंकि उसको ए तो चूज ही नहीं करना था, इसके पास तीन पॉसिबिलिटीज बची थी। इसके थर्ड स्टूडेंट्स के पास यहाँ पे दो दो पॉसिबिलिटीज बच रही हैं। इसके बेसिस पे हमारे कितने अरेंजमेंट पॉसिबल्स है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 अरेंजमेंट पॉसिबल है। ये टोटल 6 अरेंजमेंट्स आई हमारी। इन द सेम वे अब दोबारा से आ जाइए आप फर्स्ट वाले स्टूडेंट पे, इसकी भी आप इसी तरह से 6 पॉसिबिलिटीज आगे बनेंगी और 6 उसके बाद, एंड देन 6। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है हमारी? टोटल पॉसिबिलिटीज को इनको सबको ऐड करेंगे तो टोटल पॉसिबिलिटी विल बी 24। these possibilities कि आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन इज दैट नो टू स्टूडेंट्स आर इन द शुड बी इन द सेम कॉलेज, कोई भी दो स्टूडेंट्स को सेम कॉलेज में नहीं होना चाहिए। तो टोटल हमारे पास 24 पॉसिबिलिटीज होती है। अब हर एक स्टेटमेंट में हर एक क्वेश्चन को इस तरह से अरेंज करना, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स क्या करती है? इसके लिए एक वे चूज किया कि हमारे पास 3 स्टूडेंट थे, पहले स्टूडेंट्स के पास कोई कॉलेज सिलेक्ट करने के देयर आर 4 वेज, देयर आर 4 वेज। स्टूडेंट ये S1 स्टूडेंट इन 4 कॉलेजों को सिलेक्ट कर सकता है। अब इसने अगर कोई एक भी सिलेक्ट कर लिया तो इसके पास कितने वे बचेंगे? 3 वेज। इस सेकंड स्टूडेंट के पास 3 वे बचते हैं, या तो वो ये इस तरह से ये वाले चूज करेगा, या फिर आगे जो बी के अकॉर्डिंग आएंगे वो सी के अकॉर्डिंग आएंगे वो, मतलब उसके पास 3 ही वे बचते हैं क्योंकि एक कॉलेज ये सिलेक्ट कर चुका ऑलरेडी। इन द सेम वे अब इसके पास कितने तरीके बचते हैं, कितनी चॉइसेस बचती हैं? इसके पास सिर्फ 2 चॉइस बचती हैं, यानी कि अपना कॉलेज सिलेक्ट करने के देयर आर ओनली 2 वेज। फर्स्ट वाले के पास 4 है, सेकंड स्टूडेंट के पास 3 ही वे बचे हैं क्योंकि सेम कॉलेज तो सिलेक्ट करना ही नहीं है, और इसके पास अब इन दोनों ने अपना अपना कॉलेज सिलेक्ट कर लिया है, तो इसके पास ओनली देयर आर ओनली 2 वेज। सो आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 2,
तो भी आप देन यू विल गेट आल्सो 24, तो भी आपको ये 24 ही मिलता है। आपने इस पूरी अरेंजमेंट बनाई, एक एक करके देखें, 6 पॉसिबिलिटीज आपको यहाँ से मिली। From here you will also 6 possibility and 6 and 6. In this way you will get 24 possibilities. फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग कहती है अगर आप इन सारे वेज को इस तरह से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आपको 24 मिलता है। तो यहाँ से एक शॉर्टकट बन जाता है, हर एक क्वेश्चन को आप इस डिटेल में नहीं कर सकते। तो ये परमुटेशन की शुरुआत हो जाती है। मींस परमुटेशन इज अरेंजमेंट। इन हाउ मेनी वे यू कैन अरेंज दीज स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट अपना कॉलेज सेलेक्ट कर ले और कोई भी स्टूडेंट, कोई भी 2 स्टूडेंट सेम कॉलेज में ना हो, इसके कितने वे हो सकते हैं, इस बात को आपको अरेंज करना है। अगेन आई एम टेलिंग यू परमुटेशन मींस अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, यू हैव टू अरेंज these situations. So time is going on and we will discuss this permutation in the next period also. कल फिर से इसको डिस्कस किया जाएगा। मीटिंग इज गोइंग ऑन। और permutation we will discuss this concept of principle of counting, a principle of multiplication, and next principle is principle of addition. हम उसको भी डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आज आपके लिए यही आपको होमवर्क है कि आपको 7